A very sunny good morning to every students. Yesterday, I had taught you how the writer Khuswant Singh described about his grandmother. What type of woman she was, what did she used to play as a game in her childhood, what did she do to go to temple, or how did she think, how did she do work, how she do her regular work, what did she always teach Mr. Khuswant Singh, the writer of the lesson, The Portrait of a Lady. In this lesson, Khuswant Singh depicts about his grandmother, what type of lady she was. पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह कैसे अपने दादी माता को एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. हाउ शी वॉज लुकिंग, किस तरीके की वो दिखती थी. हाउ शी वॉज चैंटिंग हर प्रेयर, कैसे वो अपनी प्रार्थनाएं गाया करती थी इन अ मोनोटोनस टोन, बहुत ही उदास, बहुत ही नीरस भरे स्वर में गाती थी. बट द राइटर लाइक्ड इट, फिर भी राइटर खुशवंत सिंह उसको क्या करते थे, पसंद करते थे. मेनी मोर थिंग्स अबाउट हर ग्रैंड मदर ही डिस्क्राइब्ड. what type of food she always gave to the street dogs, किस तरह का वो भोजन दिया करती थी. the stale chapatis which was given to the street dogs, चपातीस जो थे, जो बासी चपाती थे, वो हमेशा कुत्तों को खिलाया करती थी. Whenever खुशवंत सिंह went to school, she always went with him, वो भी उनके साथ जाया करती थी. खुशवंत सिंह always studied in school and she always went to temple that was connected to his school. वो हमेशा उस टेम्पल में जाती थी जो खुशवंत सिंह अर्थात राइटर के स्कूल से कनेक्टेड था, लगा हुआ था. After the school was over, she and Khuswant Singh walked back to his own home. सभी वे लोग अपने कहाँ आ जाते थे, घर आ जाते थे. And following many things more things was described by Khuswant Singh, the writer of the lesson. Today we will start from the next passage of the lesson, the portrait of a lady, written by Khuswant Singh, passage number 5. Today we will describe passage number 5 and 6. आज हम लोग पैसेज नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे. What did खुशवंत सिंह एक्सप्लेन his grandmother, क्या खुशवंत सिंह अपनी दादी माता के बारे में बताते हैं. The writer Khuswant Singh says further, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. When, जब my parents were comfortably settled in city, the writer wants to say that when his parents, his mother and father settled, his mother and father suited in the city, they called him. वे सभी लोगों ने उनको क्या किया, बुला लिया with his grandmother, उनकी दादी माता के साथ. Means the grandmother and the writer went to city to settle with his parents. तब दादी माता और खुशवंत सिंह कहाँ चले गए, शहर चले गए उनके साथ रहने. That was a turning point in our friendship. The writer further says that this was the critical point. This is the critical point in his friendship. वो उनके मित्रता में क्या था, सबसे turning point था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. कहता राइटर कि भले ही मैं मेरी दादी माता एक कमरे को शेयर करते थे, we will share the same room, but my grandmother did not come to school at this city. इस स्कूल में, इस शहर में मेरी दादी माता अभी स्कूल में मेरे साथ नहीं आती थी. But in the villages she always used to come with me. वो हमेशा मेरे स्कूल में मेरे साथ आया करती थी. I used to go to an English school in a motor bus. The writer says that he used to go to school in English school. He used to go by bus. वो किससे जाते थे, बस से जाते थे. अर्थात राइटर कहता है कि मैं
मेरी दादी माता एक ही कमरे को शेयर करते थे, लेकिन अब दादी माता मेरे स्कूल जाया नहीं करती है। मैं स्कूल जाता तो हूँ, एक अंग्रेज स्कूल में जाता हूँ, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता हूँ, जहाँ पे मुझे किससे भेजा जाता है? आई वॉज सेंड बाय अ बस, मैं एक बस के द्वारा भेज दिया जाता हूँ। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कहता है देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स लाइक विलेजेस, कहता है जैसे गाँव में गलियों में कुत्ते घुमा करते थे, वैसे शहरों में कुत्ते नहीं मिला करते हैं, वो कुत्ते जिसको मेरी दादी माता चपातीस खिलाया करती थी। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कहता है राइटर खुशवंत सिंह, कहते हैं बट लेकिन जो मेरी दादी माता है अब वो फीड करते हैं, खिलाते हैं, फीड मीन्स खिलाना। अब मेरी दादी माता खिलाया करते हैं द स्पैरोज, स्पैरोज मीन्स गौरैया, जो गौरैया चिड़िया होती हैं उनको मेरी दादी माता क्या करती हैं? खिलाया करती हैं। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इन आवर सिटी हाउस देयर वर मेनी स्पैरोज केम एंड माई ग्रैंड मदर ऑलवेज फेड देम, ऑलवेज फेड देम, हमेशा उनको क्या करती थी? खिलाती रहती थी। बिकॉज देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी हाउस, क्योंकि आसपास के सिटी हाउस में कोई कुत्ते नहीं दिखाते थे। As the years rolled by, we saw less of each other, कहता राइटर as the years rolled by, as the time passed, जैसे जैसे समय गुजरता गया, we saw less of each other, हम लोग एक दूसरे को कम देखते थे। Means they meet for short time, वे लोग मिलते थे लेकिन कितने समय के लिए? बहुत ही कम समय के लिए मिलते थे, अर्थात अब they cannot converse with each other, अब वे लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, टॉक्स नहीं करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, कुछ समय तक she continued to wake me up, अभी भी जो गांव में जिस तरीके से वो प्रतिदिन मुझको जगाती थी, मुझे तैयार करती थी स्कूल भेजने के लिए, यहाँ आने के बाद कुछ समय तक मेरी दादी माता ने मुझे जगाया, मुझे तैयार किया, get ready for the school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When I returned from my school, कहता राइटर कि जब मैं अपने विद्यालय से घर आता था, my grandmother always asked me what did he learn in school, कि वह स्कूल में क्या पढ़ाया आज। अर्थात जब कभी भी मैं वापस आता था तो अक्सर मेरी दादी माता पूछा करती थी कि आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा है, आज तुम्हारे टीचर्स ने तुमको क्या सिखाया है। कहता राइटर आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड। कहता राइटर कि जब कभी भी मैं आता था स्कूल से तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज आस्क्ड सम क्वेश्चंस, व्हाट डिड ही लर्न इन स्कूल। आई ऑलवेज सेड टू हर दैट आई लर्न सम इंग्लिश वर्ड, सम rules of science, some rules of mathematics and many other things that was happened to me. मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करता था जो मेरे साथ विद्यालय में घटित होती थी, जो मुझे विद्यालय में पढ़ाया जाता था। This made her unhappy. At this time, at this conversation, my grandmother was unhappy. इस बात से मेरी दादी माता बहुत अनहैप्पी हो जाती थी, बहुत प्रसन्न हो जाती थी। She felt uncomfortable, उनको अच्छा नहीं लगता था। She could not help me with my lessons. क्यों? Because she could not help me, क्योंकि वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी इन दीज लेसन्स, इन चीज़ों में, अर्थात इंग्लिश के शब्दों में, आर्किमिडीज के सिद्धांतों में, अर्थात गणित के प्रश्नों में वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सो शी वॉज फीलिंग सो बैड, शी वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल। She did not believe in these things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe in these things. मेरी जो दादी माता थी, she was theist, वो बहुत आस्तिक थी। She believed that schools should be taught about God's स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स। उनको लगता था कि जो विद्यालय हैं, खासकर इंग्लिश विद्यालय हैं, उनको भी गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। बट माई ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट टॉट इन माई स्कूल, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ाती थी। इसलिए जो दादी माता थी, जब कभी भी मैं विद्यालय से आता था और मुझसे सारे प्रश्न पूछती थी, वो बहुत अप्रसन्न हो जाती थी, क्योंकि वो चीज़ें ढूंढा करती थी भगवान के बारे में, उपनिषदों के बारे में और होली बुक्स या
पवित्र किताबों के बारे में जो पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये सारी चीज़ें मुझको नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए मेरी दादी माता इस बात से परेशान रहती थी। One day I announced that we were being given music lesson. One day I announced. One day the writer said that today we will learn, we will remember, we will chant the music lesson. एक दिन लेखक ने बताया कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज हम लोग ने पढ़ा है कि संगीत के बारे में। What is music? म्यूज़िक क्या होता है? My teacher give me a lesson of music. मेरे टीचर ने आज मुझको क्या दिया है? एक लेसन दिया है, एक सीख दिया है। किसके बारे में? संगीत के बारे में। She was very disturbed. इस बात पे भी मेरी दादी माता बहुत डिस्टर्ब हो गई। She was feeling some problems. उनको कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत महसूस हो रहा था। To her music had lewd associations. उनके जो संगीत थे, उनकी जो गीत थे, वो बहुत ही ल्यूड थे, बहुत ही खराब थे। एसोसिएशंस, एसोसिएशन मतलब होता है समुदाय में, संबंध में। कहता है टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका जो संगीत था वो बहुत ही खराब था, बहुत ही बेकार था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। कहता है राइटर कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो गीत थे, वो मोनोपोली था, एकाधिकार था। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। यानी जो संगीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया, दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनोपोली अबाउट beggars and harlots. Beggars means भिखारी, and harlots means वैश्या। यानी मुझे जो संगीत सिखाया गया, that was taught in my school, that was about monopoly of beggars and harlots. यानी मेरी दादी माता को ये इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि ये गीत ज़्यादातर वैश्याओं और भिखारियों के बारे में था, जो उनके एकाधिकार के बारे में बताता था। एंड देयर इज़ नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और लोगों को इससे कोई संबंध नहीं था। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, इसका कोई मानव से कुछ लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। सो माई ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट, इसलिए मेरी दादी माता इस तरह के जो गीत जो मुझे स्कूल में सिखाए गए थे, जो संगीत मुझे सिखाया गया था, उसको मेरी दादी माता पसंद नहीं करती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंट मीन डिसअप्रूवल, वो कुछ कही तो नहीं, she did not speak a single word, but his face showed me his ignorance of this music. लेकिन उनके चेहरे ने ये बता दिया कि वो इस म्यूज़िक को लेके इग्नोर करते हैं, इस म्यूज़िक को लेके वो बिल्कुल अप्रूव नहीं करती हैं, अर्थात उनका इस संगीत के प्रति क्या है, डिसअप्रूवल है। She rarely talked to me after that, and after this incident she less talked with me, वो बहुत मेरे साथ कम बातें किया करती थी। एंड आफ्टर दैट वी विल मीट वेरी लेस टाइम टू ईच अदर, इसके बाद हम लोग एक दूसरे से बहुत ही कम बातें किया करते थे। दिस इज द पैसेज ऑफ 5 and 6, दिस इज द पैसेज नंबर 5 and 6 दैट वी एक्सप्लेन टूडे। ये पैसेज नंबर 5 और 6 है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। The next day we will heading towards the passage number 7, 8 or 9. Thanks for watching the video. Thanks a lot.